So today what we're going to be doing is one shots for government budget. Government budget. अब government budget होता क्या है? We have I will always, whenever I take, if I say that I'm talking about, like if I receipt, I am the government. Government दो major चीजें करती है. एक करती है खर्चा कट्ठा, which is receipts, and on the other side it has expenditures to make. Why is the government doing all this? Because the government needs money to spend on people, right? So there are two main things which the government does. One is receipts of money, and expenditure which the government does in a period of 1 year, and that 1 year is your fiscal year. Fiscal year, financial year is one of the same things. अगर हम उस हिसाब से देखें, it is an estimation of all the receipts and the expenditures which the government does for a period of 1 year, which is your accounting year, which starts from 31st of, sorry, 1st of April to 31st of March. 31st of March. ये हमारा accounting year है. Very importantly, I am talking about the estimations which the government will make. They are not the actual figures which the government will make. They are the estimations. We have to keep them in mind. All right. Next, इसके अंदर जो हमारे हैं features of government budget. ठीक है, it is an first thing estimation. Please understand, it is not a fact. We are planning for the future, and for the future we need to understand कि आने वाला जो time है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. It cannot be a fact, and it is generally, मेरा word है generally, for a period of 1 year. Why am I saying generally? There have been times where the budget in the economy was for 18 months also. Okay, times have been there due to emergency or whatever, right? And these authorities, receipts, are actually called the अथॉरिटी. सरकार को अथॉरिटी है आपसे पैसा इकट्ठा करने की. और एक्सपेंडिचर्स क्या हैं? सैंक्शंस हैं जो सरकार सैंक्शन करती है जो लोगों पे खर्च करने के लिए है, right? So these are my receipts and expenditures and features of government budget, right? Next, we need to talk about one of the most important topics which has been coming very frequently in the exams, which are objectives of government budget. गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? राइट, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, वी नीड टू अंडरस्टैंड यू आर गेटिंग 3 marker क्वेश्चन फॉर सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. सो यू वेरी केयरफुली नीड टू लर्न दीज, अंडरस्टैंड देम. यू कैन गेट मैच द कॉलम्स, you can get tell one word, they've given the statement, you have to specify which objective it is. So they are very important, right? The first objective is redistribution of income and wealth. ये दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है. वन, वी नीड टू चार्ज टैक्सेस टू द rich and provide subsidies to the poor. In such a case, if you get 3 marker question, please not to draw lines and put anything on the screen. If we have a 3 marker for redistribution of income and wealth, taxes, you can give first, you can talk about that, it is one of the fiscal measures in which includes taxation and subsidies. Then one by one talk about taxes. The government levies taxes on the rich, and you can give an example, progressive tax and everything. And for in case of subsidies, you can talk about examples like PDS. Give examples, they're looking for examples, right? Though this is how it goes. And then the second we have is reallocation of
Resources, reallocation of resources. Here we have 3 points. First is the balance. Balance between what? Balance between the goal of, see, a private sector organization will always and always want what? They will want to balance. Private sector will have profit maximization, and the government wants to do वेलफेयर सोशल वेलफेयर. सो इस दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए. अगर बहुत ज्यादा हाई एंड प्राइवेट सेक्टर है तो गवर्नमेंट समवेयर और द अदर हैज टू मेक अ बैलेंस बिटवीन प्रोवाइडिंग एंड जस्टिफाइंग द फैक्ट दैट वी आर देयर. लाइक इंडिया के अंदर वी हैव सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, all these things. Hence, there has to be a balance. The second we talk about over here is the demerit goods. Demerit goods कौन से होते हैं? Demerit goods हो गए जैसे अल्कोहल, ड्रग्स तो चलो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया, सिगरेट्स, ठीक है. द गवर्नमेंट पुट्स टैक्सेस ऑन सच गुड्स. व्हाई? बिकॉज वी वांट टू डिस्करेज द यूज ऑफ डीमेरिट गुड्स. एंड ऑन द अदर साइड वी हैव मेरिट गुड्स. मेरिट गुड्स क्या हुए? जो सरकार लोगों के भले के लिए बना रही है या इस्तेमाल कर रही है. जैसे जो लोगों को सरकारी नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल रही है, उनके पास पैसे नहीं है, तो सरकार wants to open schools for them. सरकार wants to open health care facilities from there. All these comes here. अब आप कहोगे कि मैम this is merit goods are here also and subsidies they're talking about here also. वहां पर perspective behind put giving subsidies is equal distribution of wealth, right? The rich don't get too rich, bridging the gap between rich and poor. Whereas reallocation ke andar we are trying to balance out stuff. The word here majorly we talk about is balancing stuff, right? Then the third objective we talk about is higher rate of GDP. Any economy, है ना? We know India is the fifth largest economy in the world right now. So on that fact and figure, we understand we want to grow our GDP. So the government needs to make expenditures on how they can grow the GDP. That can be done with the help of providing basic infrastructure, right? Providing some kind of incentives, some policies. We can promote that with the help of these high infrastructure facilities, like opening SCZs that will help in enhancing the GDP of the country by making more exports, by providing more facilities like communication, transport, roads, construction of all these things, which will enhance GDP growth. Then the fourth point we have is balanced regional growth. There are so many times areas like the rural areas where there is not much in advancement. So the government gives incentives. If you try and opening industries in the rural areas, wahan par then people will get more benefits. There'll be more employment, there'll be more income, resulting in more people sending their children to school. That helps to balance out stuff. That is why it is important, right? डिस्पैरिटी को कम करने के लिए, रूरल और अर्बन एरियाज की डिस्पैरिटी को कम करने के लिए, so that in those areas also we have a lot of employment and growth in these areas. Then the next we have is employment generation, क्योंकि हमारी कंट्री का ये गोल बहुत ज्यादा जरूरी है. Why? Because there is lot of population, and the second point is there are a lot of poverty issues. Hence, one of the main ways in which we can tackle all this is employment generation. One of the major schemes you've talked about is Manrega. Manrega is the Mahatma Gandhi Rural Employment Guaranteed Act. ठीक है? It is one of the largest worldwide program for what do you call employment generation in the world. Not just India, guys, it's the world. Then we have Pradhan Mantri Rozgar Yojana, PMRY, right? All these are being put forward to generate employment in the economy. And last, ठीक है जी, economic stability. This you already know a little bit. Last class we talked about the fiscal policy.
Fiscal policy sums up taxation, expenditure, and the borrowings. Government uses these three instruments to do what? To stabilize the economy. Too much of inflation and too much of deflation, too much of money supply, I wanted to say, too much of money supply, increase in money supply or decrease in money supply, both are not very good for economy. So inflation and deflation not good. We need to stand in the middle somewhere, that is stability lekar aane ke liye we can use this budget where we can charge more taxes, we can increase our expenditure, we can increase our borrowings or decrease our borrowings depending on that. Hence we can get economic stability in the economy. So these are the six main main and the only one which you have in your syllabus. The fact objectives very important. So the next topic over here is कि government budget, government जो budget है उसके components क्या हैं, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं. अभी आप दो चीजें पढ़कर आए हैं. वन इज योर रिसीट्स विच वी कॉल budget receipts, and the second we have is budget एक्सपेंडिचर. या तो सरकार खर्चा कर रही है या पैसा इकट्ठा कर रही है. पहले सरकार पैसा इकट्ठा करती है फिर खर्चा करती है. जैसे हमारे घरों में बजट एक डिफरेंट तरीके से चलता है. हम पहले देखते हैं हम कितना कमा रहे हैं, उस हिसाब से हम खर्चा करते हैं. बट देश के अंदर हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमने कितना खर्चा करना है, उस हिसाब से वी सेटल डाउन हाउ मच टैक्सेस और हाउ मच एक्सपेंडिचर रिसीट्स वी नीड टू मेक. हेंसफोर्थ बजट के फर्दर दो टाइप्स हैं. बजट के फर्दर दो टाइप्स हैं. पहला है, द फर्स्ट वी हैव इज रेवेन्यू receipts, revenue receipts, and the second we have is capital receipts. Revenue receipts and capital receipts, ये हमारे पास दो टाइप ऑफ receipts हैं. Similarly here also we have revenue expenditure and capital expenditure. One very important thing, I'll just explain what both of them are, but what recently in the exams I've seen, difference between revenue receipts and revenue expenditure, difference between capital receipts and capital expenditure, difference between receipts and expenditure. ठीक है, differences बहुत आते हैं. After this class try making and writing down all the differences. अभी आगे जो हम concepts करेंगे वो भी I'll further tell you which all we want. So the revenue receipts के अंदर अगर हम बात करें, revenue receipts are those receipts which do not create assets. ऐसी कोई रिसीट, मैं कौन हूं? सरकार. मैं कौन हूं? सरकार. सरकार ने जो क्या नहीं किए हैं, सरकार ने जो पैसे रिसीव किए हैं, रिसीव करने पे सरकार का कोई एसेट नहीं क्रिएट हुआ, मतलब सरकार की कोई पोजेशन नहीं हुई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेट नहीं हुआ. ठीक है जी, कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हुआ. एंड यहां पर वर्ड है or because both things cannot happen together, or do not lead to reduction in the liabilities. ऐसी कोई आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया इसको, आई एम सो सॉरी. क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, ऐसी कोई रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट जो कि, हाँ जी, थैंक यू शौर्य. ठीक है जी, ऐसी कोई रिसीट जिसकी वजह से लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई. मैंने कोई पैसा रिसीव कर लिया है, मुझे किसी को वापस नहीं करना, मेरी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है. एंड इट डज नॉट, it is or it does not lead to reduction in the एसेट्स. ना ही मेरा कोई एसेट रिड्यूस हुआ है, अच्छा खासा एसेट मेरा वहां पड़ा है. जैसे कोई सरकार ने रिसीव किया है, फर्स्ट देखेंगे एग्जांपल्स के तौर पे. आई जस्ट टॉक अबाउट एंड डिस्कस देम मोर आल्सो. इफ द गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड एनी टैक्सेस, क्या इज इट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू पे इट बैक? नो, हेंस देयर इज नो लायबिलिटी व्हिच इज क्रिएटेड. और टैक्सेस लेने पे क्या सरकार का कोई एसेट रिड्यूस हो गया? नो. टैक्सेस कलेक्ट किया, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज टू पे, डजंट मैटर, हेंस टैक्सेस. सेकेंड, यहां पर हमारे पास आती हैं नॉन tax receipts. We'll just discuss both of them in some time, but these are those receipts which do not create any liability or nor do they reduce the asset of the people. Next हमारे पास capital receipts हैं. Capital receipts are those which, yes, create liability
मैंने पैसा ऐसा रिसीव किया जिसकी वजह से लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। मतलब मैंने लेट्स जस्ट से जापान से इंडिया में मैंने पहले बताया था आई एम द गवर्नमेंट, आई हैव रिसीव्ड मनी विच हैज लेड टू व्हाट, क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी। मुझे आज नहीं तो कल जापान को क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। हेंस दीज आर माय बोरोइंग्स, तो क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। और दे रिड्यूस they reduce lead to reduction in my asset। मेरा एसेट रिड्यूस हो गया है। व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूस हो गया है? दैट इज जैसे लेट्स जस्ट से दिस इज माय बैलेंस शीट, आई एम द गवर्नमेंट, आई एम द गवर्नमेंट, और मेरी ये बैलेंस शीट है। ठीक है जी, यहाँ मेरे पास है लायबिलिटीज और यहाँ मेरे पास हैं सारे एसेट्स। ठीक है जी, और मेरे पास था लेट्स जस्ट से एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? मुंबई एयरपोर्ट। 10,000 करोड़ का ये एसेट था मेरा। ठीक है, मैं सरकार हूं, मैंने इसको 50% शेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, कितना? 50% शेयर 5,000 करोड़ का अडानी को बेच दिया। पैसे आ गए मेरे पास और मैंने इसको बेच दिया। तो मेरे लिए क्या हो गया? ये एसेट रिड्यूस हो गया। पहले मेरे पास एक एसेट खड़ा था ये 10,000 का, आज वो 5,000 का रह गया। सो दिस इज व्हाट? डिस इन्वेस्टमेंट। Or I can tell you one more example in this. Let's just say I had given money for as a loan to Sri Lanka for 500 crores. ठीक है, every year I was getting some interest payment. ठीक है, it was an asset for me. It was helping me earn profits, right? So what happened is that it has helped me earn income. But today I have done what? I have sold, Sri Lanka has paid me money back. I have what? Recovery of loan। ठीक है जी, रिकवरी ऑफ लोन। 5,000, जो 500 करोड़ का मेरा श्रीलंका के पास लोन था, उसने मुझे पैसा वापस दे दिया, तो मेरा एसेट रिड्यूस हो गया। अब मुझे कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं आएगी। henceforth it is not any asset, no longer an asset for me, hence my asset has reduced, right? So these are your capital receipts. Next, what we go to is revenue expenditure. Revenue expenditure are those expenditures which do not create any asset। मैंने ऐसा कोई खर्चा किया, मैं कौन हूं? सरकार। मैंने ऐसा कोई खर्चा किया जिसकी वजह से ना तो मेरा कोई एसेट क्रिएट हुआ, ना ही, guys the word is or not and, two things not together, not possible, nor I was able to lead to, nor did it lead to a reduction in my liabilities। ठीक है जी, लेट्स जस्ट से आई पेड सैलरीज। ठीक है, सैलरीज टू माय स्टाफ, टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस पीपल, ऑल दीज सैलरीज, द पेंशंस विच आर गोइंग। ठीक है जी, द एक्सपेंडिचर आई एम डूइंग फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, द एक्सपेंडिचर विच आई एम डूइंग ऑन डिफेंस। ठीक है जी, बंदूकें खरीद ली, वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए है, मेरी कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए है। ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स आर नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट फॉर मी, नॉर आर दे रिड्यूसिंग एनी liability for me, hence they are revenue in nature। On the other side, if they create an asset, or if they lead to a reduction in the assets, right, so they become capital expenditure। Let's just go, अगर मैंने कोई हॉस्पिटल बिल्ड किया है, कोई स्कूल बिल्ड किया है, इट इज एन एसेट फॉर मी, मेरे लिए एक एसेट क्रिएट हो गया है। रोड्स, डैम, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस। ठीक है जी, ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स विच आई हैव डन, दे हेल्प टू क्रिएट एसेट, राइट। और एक सेकेंड, और ऐसी कोई लायबिलिटी रिड्यूस कर दी है मैंने, रीपेमेंट ऑफ लोन किया है। मेरे पास, जो मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, बैलेंस शीट का एग्जांपल है, आई हैड अ लायबिलिटी। ठीक है, मैंने जापान से पैसा बोरो किया था फॉर 100 करोड़। एवरी ईयर मेरा इंटरेस्ट जा रहा था, आज नहीं तो कल मुझे इनको पैसा वापस करना था। हेंस
100 crores was a liability on me, but today I repaid it. ये मेरी लाइबिलिटी ही खत्म हो गई, मैंने पैसा दे दिया, खर्चा किया, मेरे से बाहर चला गया. तो दिस इज रीपेमेंट ऑफ माई लोन. द एसेट हैज reduced in such a case. आ रही है बात समझ में? So this entire thing is my receipts and expenditures, right? Few things you need to keep in mind over here, everybody. Revenue receipts and revenue expenditures are recurring in nature. They reoccur every year, they reoccur, recurring in nature, whereas capital receipts are not recurring in nature. They may keep happening again and again, but after breaks. But these expenditures which are under the revenue expenditures, they are a mandate every year. This much specific amount of money is going out of my system. Therefore these are my recurring receipts or recurring expenditures, right? Very importantly, you can differentiate the difference between taxes and non-tax receipts. All right, so now let's go one by one about tax and non-tax receipts. Right, I'll first here talk about my tax receipts. So what are tax receipts? Taxes are basically compulsory payments which every citizen of the country has to pay who has earned a specific amount of money, right? So taxes are a compulsory payment, right? Second, we need to understand over here is taxes are a personal obligation, compulsion, compulsory. And second, we have they are what you call a responsibility. ठीक है जी, और अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, पर्सनली उसको ये करना है. नो प्रपोर्शनेट बेनिफिट. प्लीज इंपॉर्टेंटली, अगर मैं सबसे ज्यादा टैक्स पे करती हूँ जैसे चंडीगढ़ के अंदर, एंड आई कैन नॉट आस्क द गवर्नमेंट कि मेरे घर के सामने वाली जो सड़क है वो बहुत सुंदर होनी चाहिए. देयर इज नो प्रपोर्शनेट बेनिफिट इफ आई एम पेइंग अ टैक्स टू द गवर्नमेंट. यू कैन नॉट हैव आस्क फॉर अ जस्टिफिकेशन कि आपने मेरा पैसा कहाँ लगाया. वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपसे पैसा लेना और उसको आगे लगाना. यू कैन नॉट क्वेश्चन देम, राइट? एंड देयर इज अ लीगल imposition, matlab as in if you do not pay, they are legally imposed on you, legally imposed on you. If you do not pay in under the IPC, you can be held a criminal for that matter. तो आपको ये legally pay करने हैं. Then these taxes are of different types. ठीक है, one of the major types you must have heard what would be progressive एंड रिग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव टैक्सेस जो होते हैं हमारे वो होते हैं जैसे इनकम टैक्स. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता है. रिग्रेसिव टैक्सेस, इसको मैं बोलूंगी डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है जी, दे आर डायरेक्ट टैक्सेस. ऑन द अदर हैंड रिग्रेसिव टैक्सेस आर जनरली इनडायरेक्ट टैक्सेस इन नेचर. एज द इनकम increases, the rate of tax decreases. जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है the rate of tax decreases. This is very stupid to see if it's working in a country. It is not possible to find such a thing, but this happens. ठीक है, in form of indirect tax. This is proportionality. If I go to the restaurant and if I'm rich, ठीक है जी, and the tax rate is 20%, just an hypothetical example, it is not affecting me. But for a poor person, that 20% is a lot. So regressive taxes are more a burden to the पुअर पर्सन. हेंस दे आर रिग्रेसिव इन नेचर. जितनी ज्यादा इनकम लेवल्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जितनी कम इनकम लेवल्स हैं उनको ज्यादा फर्क पड़ता है. सिमिलरली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी डिफरेंसेस यहीं से बनते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस which affect which are borne and which are borne by the same person जिसको पे करना है. So incidence and the implication is on the same person. I am earning income and I am the one who's paying it. I am paying direct taxes, which is examples are income tax, wealth tax, personal tax, property tax,
Whereas indirect taxes are those taxes which are borne by one but paid by the other person. I go to a restaurant, I eat food. Who ate food? I ate food. But who pays on my behalf? The restaurant owner. Hence they are indirect in nature. Therefore we need to understand indirect taxes are क्या कहते हैं, borne by one but paid by the other person. एक डिफरेंस ये हो गया. सेकेंड हो गया एग्जाम्पल्स, इनकम टैक्स और वहां पर आप दे सकते हो जीएसटी. फिर प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर. उसके बाद यू हैव इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइसेस. डायरेक्ट टैक्सेस से कोई लेना देना नहीं है. इनडायरेक्ट टैक्सेस से देयर इज अ डिफरेंस इन द मार्केट प्राइस. इफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर हायर, let's just say GST on cars, it is now 28%. The prices of cars have shot up, so it affects the market price of commodities. So 4 differences more than sufficient. और भी मैंने notes में दिए हुए हैं, you can learn from there. Next we have over here is the other type of taxes we talk about. Then we have VAT. ठीक है जी. VAT is value added tax or ad valorem taxes, that every stage you have different amount of tax. This is one. And the second we have is specific tax. Specific taxes are those taxes which are charged on a specific कमोडिटी, और इट्स लाइक अ पर यूनिट टैक्स. जैसे दाल हो गई, है ना, किलो के हिसाब से उस पर टैक्स अगर लगने लग जाए, केजीज के हिसाब से लग रहा है, साइज के हिसाब से लग रहा है, वेट के हिसाब से लग रहा है, तो उसको हम स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं. whereas VAT is in percentages, it is at every level, and value added tax. So that is every stage you have taxes. They're difficult to avoid. That is the main crux, right? Then we have differences of indirect and direct taxes. Again, I'm telling you, tax and non-tax ka difference very important. Direct and indirect taxes ka very important. Then on the second side we have non-tax receipts. Non-tax receipts. Non-tax receipts are receipts which are not tax. ठीक है जी. इसका बेसिक डेफिनेशन है, नॉन टैक्स रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच आर अदर देन द टैक्स रिसीट्स. दिस इज द डेफिनेशन आल्सो. इसके अंदर वी हैव वेरियस डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट वी हैव इज एस शीट. एस शीट क्या होता है? एस शीट होता है, लेट्स जस्ट से देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी रिच और ही हैज प्रॉपर्टी बट ही डज नॉट हैव अ लीगल हेयर. अगर कल को वो मर जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? ये एक क्वेश्चन मार्क है. तो सरकार कहती है कि अगर कोई इंसान विदाउट अ लीगल एयर मर जाता है, मैं 1 महीने का नोटिस दूंगी. अगर कोई उसका लीगल एयर आ जाता है, ठीक है, नहीं तो इंटायर प्रॉपर्टी गोज टू द गवर्नमेंट. सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है, सरकार की कोई एसेट रिड्यूस नहीं हो रही है. हेंस इट इज अ नॉन टैक्स रिसीट. Then the second we have over here is your special assessment. Special assessment क्या होती है? Special assessment होती है when, let's just say, I bought a property, and that property I was for 1 lakh rupees in 2010, right? आज उस एरिया में एयरपोर्ट भी खोल दिया गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट ने उसके अंदर बहुत सारी चीजें कर दी, और उसकी वजह से क्या हो गया? द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड मी टू पे अ लिटिल टैक्स ऑन दैट. henceforth it is what? It is a special assessment. All right, एक सेकेंड just. राइट, स्पेशल असेसमेंट. तो सरकार मुझे एक नोटिस भेजती है जिसके अंदर द गवर्नमेंट सेज दैट दिस इज द अमाउंट यू हैव टू पे फॉर ऑल दी डेवलपमेंट आई डिड. तुम्हें तो बेनिफिट हो गया ना, तुम बेचो ना बेचो उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है. देन द नेक्स्ट थिंग हमारे पास यहाँ पर है प्रॉफिट्स फ्रॉम PSUs, BSNL, let's just say it's in profits. All the money which the government earns will go as a non-tax receive. सरकार की कोई liability नहीं है, और सरकार का कोई asset reduce भी नहीं हो रहा है, कोई भी सरकार का public sector enterprise. ठीक है जी. उसके बाद what we have is, अभी ये खत्म हो चुका है, ठीक है. 3G 2G से शुरू हुआ था, 2G 3G 4G. जो ये स्पेक्ट्रम्स हैं जो सरकार भेजती है, वो सारे स्पेक्ट्रम्स को हमने क्या करना है? हाँ, देख लिया. ठीक है जी. सरकार क्या कहती है कि ये जब सरकार भेजती थी, 200,000 300,000 400,000 का अमाउंट होता था विच द गवर्नमेंट यूज टू रिसीव. सरकार ने हवा बेची है स्पेक्ट्रम के अंदर, बट उससे कोई लेना देना नहीं था. That is why all that money was a non-tax receipt. All right, because no liability was getting this thing.
उसके बाद द फिफ्थ पॉइंट विच वी हैड ओवर हियर इन अंडर दिस वाज फीस। कोई फाइन्स हैं, कोई चलान्स हैं जो कि क्या किए जा रहे हैं, सरकार को पे किए जा रहे हैं, दे आर नो लाइबिलिटी, नो एसेट इज बीइंग गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है जी। एंड उसके बाद कोई ग्रांट है, कोई डोनेशन है जो कि बाहर के देशों से हमारे को आ रही है, वी हैव नथिंग, देयर इज नो रिलेशन विद द गवर्नमेंट बीइंग एसेट और लाइबिलिटीज रिड्यूस होने का, दैट इज वाई these are non tax। lastly guys प्लीज इसको हमने स्टार लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट है, मैं इसको ऐसे नहीं लिखती हूँ, लेट मी राइट इट, इंटरेस्ट रिसीट रिसीव्ड ऑन लोन्स। देखिए लोन्स जो है, अगर मैंने कोई लोन रिसीव किया है, ठीक है, बोरोइंग्स है वो मेरी, ठीक है, वो मेरी क्या है, कैपिटल रिसीट। बट अगर मैंने कोई लोन किसी को दे रखा है, जब श्रीलंका को मैंने 500 करोड़ का लोन दिया, उससे मुझे इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है, हर साल आएगी, हर हो सकता है महीने आ रही है, हर क्वार्टर में आ रही है, दोज रिसीट्स आर माय रेकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू इन नेचर। प्लीज अगेन दूसरी साइड भी रेवेन्यू, जब हम उसकी बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, उसमें है जैसे जो मैंने लोन बोरो किया, लेट्स जैसे मैंने आईएमएफ से लोन बोरो किया है, उस पे मुझे इंटरेस्ट तो पे करना ही है ना, वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। बट अगर मुझे कोई, मैंने लोन किसी को दिया हुआ है, ठीक है जी, तो वो मेरा कैपिटल में जाएगा। लोन अलग चीज होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलग चीज होती है, दे टू डिफरेंट थिंग्स। इंटरेस्ट इन लोन एवरी ईयर जाता है, दे आर रेकरिंग इन नेचर। लोन हम कभी कभी लेते हैं, कभी कभी रीपे करते हैं, कभी कभी किसी देश को दे रहे हैं, वो कैपिटल में जाता है। नॉट टू फॉरगेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल राइट। सो दीज ऑल आर माई non-tax receipts. Guys, again, difference between tax and non-tax, difference between direct and indirect, they both are very important. Major sample papers के अंदर I can see this happening. All right, चलिए उसके बाद वी शिफ्ट टू एक्सपेंडिचर्स। अब एक्सपेंडिचर्स हमारे यहाँ पर हमने पढ़े थे दो टाइप के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच डू नॉट, मैंने सारे ऑलमोस्ट मेंशन कर दिए हैं, नथिंग मेजर टू डिस्कस हियर। बट एक और चीज जो वी नीड टू डिस्कस हियर, एक्सपेंडिचर्स दो और टाइप के होते हैं, ध्यान से देखेंगे, एक्सपेंडिचर्स दो और टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लान्ड, एक होते हैं नॉन प्लान्ड, ठीक है जी। अब आजकल जैसे भी आपका सारा सिस्टम चल रहा है, यू हैव कोचिंग्स, यू हैव स्कूल टू गो टू, है ना, देर आर फ्यू थिंग्स इन द एंटायर डे विच यू डोंट प्लान, right, which you don't plan. Why? Because they are going the way they are. In the morning you'll get up, you'll have a bath, you'll brush your teeth, these things you don't need to think about. These are those regular things which you are doing just because they have to be done, right? Though planned expenditures are those expenditures which on which we don't think too much, which are happening. हर साल आपने सैलरियां देनी है, लोगों की हर महीने देनी है, फॉर दैट मैटर डिफेंस पे खर्चा आपने करते ही रहना है ना, तो ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर डन एवरी ईयर, है ना। बट नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द एंटायर पैकेज ऑफ द डे यू हैड, गोइंग, गेटिंग अप, गोइंग टू स्कूल, कमिंग बैक, गोइंग फॉर क्लासेस, लेट्स जस्ट से आपके फ्रेंड का बर्थडे था, उसके लिए आपको सेपरेटली प्लान करना पड़ेगा कि यार आज मेरे को शाम को 5 बजे जाना है, तो दैट इज इट, हैव टू टेल माय मॉम दिस, दोज आर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स विच क्रॉप अप इमीडिएटली, राइट। सो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स कैसे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, कोई हमने नया प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है, लेट्स जस्ट से नारी नारी विकास योजना शुरू की है, लेट्स जस्ट से ऐसे ही कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस साल हमने वो प्लानिंग हमें करनी पड़ी, है ना। सो दोज आर माय नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, आई डिड नॉट प्लान फॉर इट, आई स्पेशली सैट डाउन एंड मेड अ सिस्टम टू थिंक अबाउट इट एंड वर्क ऑन इट, राइट। सो दे आर माय नॉन प्लान्ड, मैंने उल्टा बोल दिया अगेन, है ना, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड के अंदर प्लानिंग हम करते हैं जिस चीज के लिए, ठीक है, वो है हमारे ये प्रोग्राम्स, ठीक है, सॉरी उल्टा था, वो हमारे प्रोग्राम्स है जिनके बारे में हमें सोचना है। नॉन प्लान्ड आर द एग्जांपल्स आई टॉक्ड अबाउट, सैलरी,
ठीक है, पेंशन्स देनी है लोगों को, उसके लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, हेंस वो हमारे नॉन प्लान्ड है। ये बहुत देर से आया नहीं है क्वेश्चन पेपर में, बट प्लीज इसका डिफरेंस अच्छा है। और वन लाइनर क्वेश्चन है ना, व्हाट आर द प्लान, पेंशन ऑफ पीपल इज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ट्रू और फॉल्स, असर्शन रीजनिंग है ना, ऐसा टाइप का, यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस, राइट। अब ये हमारा पूरा कंपोनेंट्स, हाउ द बजट वर्क्स, व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड अ बजट, ये हमारी सारी चीजें बजट की हो गई। अब हम लोग देखते हैं हाउ डज द बजट वर्क। सी तो जो हमारा बजट है, इट इज टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, और टोटल receipts I am talking about. The expenditures are very important. We need to make such expenditures. Why? Because for the upliftment. आजकल ये भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि why does the government need to do expenditure, है ना जी, on the public. तो दो तीन रीजंस हैं, आप इसको बाइफ्रिकेट कर सकते हैं। एक, अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में है या डिफ्लेशनरी सिचुएशन में है, वी नीड टू मेक एक्सपेंडिचर्स। सेकेंड, फॉर दी इन एनहांस, अगेन वैसे तो जो आपने इन पॉइंट्स किए हैं इन द ऑब्जेक्टिव्स, यू कैन राइट डाउन दोस, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द, फॉर जीडीपी ग्रोथ, टू एनहांस द वर्किंग एंड द सर्कुलेशन ऑफ द जीडीपी मूवमेंट और मनी इनकम। सो ये सारे पॉइंट्स आप दे सकते हैं, बट ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। Why are expenditures in the essential in an economy, है ना, what is the role of expenditure in the budget? तो ये ऐसे questions काफी आ रहे हैं, right? So now total the significance of total expenditure क्या है, why do we do expenditure in the economy? So अब इसके बाद we have, जो मैंने बताया, budget के दो types हैं। एक होता है balanced budget, one we have is a balanced budget. What do you mean by a balanced budget? He says when total expenditure is equal to the total receipt, there is a balanced budget. But when there is an unbalanced budget also, which is there could be a surplus or a deficit in my budget. Surplus budget क्या है? When total expenditure is less than the total receipts, मतलब मैंने खर्चा कम किया है, रिसीट ज्यादा किया है, सरकार के पास सरप्लस पड़ा है। और डेफिसिट बजट क्या है? When total expenditure is greater than the total receipts. ठीक है जी, खर्चा ज्यादा किया है, पैसा उतना मैंने इकट्ठा ही नहीं किया। सो इसमें आजकल जो बड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड इज बैलेंस बजट क्या एक अच्छा साइन है फॉर एन इकोनॉमी कि भैया वो बहुत बढ़िया कर रहा है, ठीक है, इज इट द कंड्यूसिव एविडेंस फॉर वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी? नो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है सरकार ने उन ऑप्शंस को देखा ही नहीं है कि जहां पे खर्चे की जरूरत थी सरकार ने कहीं एक्स्ट्रा खर्चा ही नहीं किया, हो सकता है पीपल आर स्टिल अनएम्प्लॉयड एंड सरकार केप्ट easy to go lucky this thing कि हम तो भैया अच्छी देश हैं, है ना, to just to portray. It's not compulsory that a balanced budget shows the best of an economy. No. राइट तो ये एक क्वेश्चन है विच यू कैन टॉक अबाउट, दो तीन पॉइंट्स आप बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अनबैलेंस्ड बजट के अंदर व्हाट आर द पॉइंट्स विच यू कैन टॉक अबाउट? सबसे पहले है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट मतलब मैंने लोगों से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ गुड थिंग टू डू when the situation is of inflation. In case of inflation, it is a very good thing to have a surplus budget. Why? I'm soaking people's I'm soaking their money, liquidity. मैंने उनका पैसा खींच लिया टैक्सेस ज्यादा इकट्ठे करके, नॉन टैक्स रिसीट्स इकट्ठे करके। Whereas in case of deflation, right, in case of deflation it is a very good thing to have a deficit budget. खर्चा करना पड़ता है मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए, hence it is good for the economy to have a deflationary के केस में deficit budget. So now I'm going to be single-handedly talking about a deflation, deficit. Deficit क्या कहता है? Deficit जो होता है वो तीन टाइप का होता है। deficit Deficit is of three types. One is your revenue deficit, second is your fiscal deficit, and the last is your primary deficit. Right? Primary deficit. Revenue deficit क्या है? He says when the revenue expenditure is greater than the revenue receipts, there is a revenue
डेफिसिट। क्या मतलब कि हमने इसमें सिर्फ रेकरिंग नेचर की खर्चे और रिसीट्स डाले हैं जो हम हर साल कर रहे हैं। ये हम क्यों निकालते हैं रेवेन्यू डेफिसिट? हम इसलिए निकाल रहे हैं, वी वांट टू सी क्या हम अपने रूटीन के, जो मेरे रूटीन खर्चे हैं या मेरी रूटीन रिसीट्स हैं, क्या हम अपने खर्चे पूरे कर पा रहे हैं अपने रूटीन खर्च रिसीट से। सो दिस इज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अ कंट्री ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। जो मेरे रूटीन है, जो रेकरिंग इन नेचर है, जो मेरे होने ही होने हैं, वो मेरे रेवेन्यू डेफिसिट में आते हैं। ठीक है जी। इसकी बेसिक इम्प्लीकेशंस क्या है? अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है, आप उसको कट शॉर्ट कर लीजिए। हाफ एन आवर, ठीक है जी, आप उसको कट शॉर्ट करें खर्चे। हाँ जी, आप रिसीट्स को क्या कहते हैं, बढ़ा लें। तो इन सब चीजों के अंदर वी कैन डू दिस। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है जी, फिस्कल डेफिसिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी, फिस्कल डेफिसिट कहता है, देखो, फिस्कल डेफिसिट इज मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिसीट्स। मैंने 100 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर करना था फॉर द करंट ईयर। ठीक है जी, सारे एक्सपेंडिचर्स, रिसीट्स और रेवेन्यू और वो सारे करके। वेर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में मेरे पास क्या क्या था? एक थे रेवेन्यू रिसीट्स, जिसमें थी नॉन टैक्स रिसीट्स और टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स मैंने 20 करोड़ इकट्ठी कर ली। ठीक है, नॉन टैक्स भी मैंने 20 करोड़ इकट्ठे कर लिए। इसको चलो 30 कर देते हैं, बड़ा नॉन रियलिस्टिक लग रहा है। उसके बाद दिस ऑल हाइपोथेटिकल, ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिसीट्स के अंदर वी हैव, सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत डिसइन्वेस्ट किया इस साल। ठीक है जी, मैंने अपना एयरपोर्ट बेच दिया, ये वो है ना, मैंने 20 करोड़ इकट्ठा कर लिया। उसके बाद मेरे पास रिकवरी ऑफ लोन थी। मैंने जापान को कहा, भाई मेरे पैसे वापस कर दे, मैंने तेरे को दे रखे थे। ठीक है, उसने मुझे 10 करोड़ कर दिए वापस। अब टोटल अगर मैं सबको करूंगी, 20, 50, 60, 70, 80 करोड़ हो गया। मैंने टोटल 80 करोड़ इकट्ठा कर लिया। अब मेरे पास बचा क्या? मेरा टोटल अगर मैं देखूंगी, ये है मेरे पास। ठीक है, 100 - 80, हाउ मच? 20 करोड़ का मेरे को डेफिसिट है। राइट, दिस डेफिसिट आई नीड टू फुलफिल। मुझे तो ये 100 करोड़, मेरे को 20 करोड़ कहीं ना कहीं पेमेंट करनी होगी, तभी मेरे को डेफिसिट हो रहा है। दिस 20 करोड़ एक और कैपिटल रिसीट में अमाउंट होता है, कंपोनेंट होता है, जिसका नाम होता है बोरोइंग्स। मैं ये 20 करोड़ फुलफिल करूंगी फ्रॉम द borrowings I'll have to make in the end, which is 20 crores. So fiscal deficit is what it is, 20 crores, right? So eventually, or we can say what it means is that fiscal deficit is actually your borrowings total borrowings, राइट? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है आजकल, ये नया क्वेश्चन चला हुआ है, सैंपल पेपर्स में बहुत आ रही है। फिस्कल डेफिसिट इवेंचुअली मींस टोटल बोरोइंग्स। जस्टिफाई first to give formula. What is the formula for this? See, total expenditure minus total receipts excluding the borrowings. Guys, what do I mean by this? Capital receipts ka one of the major components is borrowings. He says take all the receipts excluding the borrowings. Don't take borrowings because that is eventually you'll have to do in the end. क्योंकि एंड में तो आपको इसको इक्वल करना पड़ेगा ना, पैसा कहीं ना कहीं तो आप लगा ही रहे हो। तो उसको न्यूमेरिकली उसके बाद एक्सप्लेन करना, वो 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन काफी आ रहा है। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान से समझ लेंगे। और इसकी फिर हमारे पास है थोड़ी बहुत ही इम्प्लीकेशंस, जो कि हैं सबसे पहला इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ठीक है जी, जितना ज्यादा आपका फिस्कल डेफिसिट होगा, ठीक है जी, उतना ज्यादा आपका इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इज कैसे? अब जो ये फिजिकल डेफिसिट है, दैट कैन बी इन 3 ways you can what do you call borrow money. One is with the external sector, the other is internal sector, and the third is the RBI. External sector is what? External sector is IMF, World Bank, other countries. Internal sector is public, when you're doing OMOs also, na, buying and selling of infrastructural bonds or some kind of bonds from public. And the last is RBI in the form of finance deficit
फाइनेंसिंग, इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी। सो अगर मैंने ज्यादा फिजिकल डेफिसिट हुआ, मतलब मुझे नए नोट ज्यादा छापने पड़ेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, वो फर्दर और इन्फ्लेशन की वजह से और पैसा बोरो करना पड़ेगा, तो एक स्पाइरल में वी गेट फ्लोटेड। देन द नेक्स्ट सेकंड वी हैव ओवर हियर इज योर, कोई बात नहीं, फाइनेंशियल बर्डन। कहता जी आज का जो बर्डन है वो तो है ही है, नेशनल डेट, एक तरीके से पैसा बर्डन हो रहा है ऑन द गवर्नमेंट प्लस द फ्यूचर जनरेशंस विच आर कमिंग इनटू द इकोनॉमी, वो सब भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। यार आप एक बंदे को आज पैसा दे लोगे, है ना, कल दे लोगे, बार बार कोई अगर आपसे पैसा मांगी जाएगा, आपको यार पागल बंदा है, इसको बार बार पैसे की जरूरत है, मैं नहीं देता, तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। क्या होती है? क्रेडिबिलिटी खराब होती है, यू हैव अ बैड नेम इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट्स। एंड देन नेक्स्ट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या कहता है? ये होता है जैसे अकाल पड़ जाना। अगर पैसे की जरूरत है, सरकार ने लेट्स जस्ट से इंटरनल सेक्टर पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर लिया, तो जब पैसा पब्लिक से इकट्ठा किया, तो जो मनी मार्केट्स के अंदर या कैपिटल मार्केट्स के अंदर पैसा पड़ा था वो कौन ले गई? सरकार। अब आपके मेरे जैसे प्राइवेट सेक्टर को अगर पैसे की जरूरत होएगा, होएगा ही नहीं, तो पैसे का क्या पड़ गया? अकाल। सरकार ही सारा पैसा ले गई, तो लोगों के लिए क्या बचेगा? फिर लोग आगे फैक्ट्रियां नहीं खोल पाएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होएगा, उन वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट वी हैव ओवर हियर इज द लास्ट, प्राइमरी डेफिसिट। यार इसमें भी आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है जी, प्राइमरी डेफिसिट क्या कहता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट। ही सेज मेरे को 20 करोड़ रुपए जो मैंने ऊपर फिजिकल डेफिसिट दिया था, 20 करोड़ वाज माय डेफिसिट, कहता उसमें से माइनस कर दो जो पुराने आपके कुछ सालों के क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, मैंने कर दिए माइनस, लेट्स जस्ट से 5 करोड़। ही सेड ओके, सो योर प्राइमरी डेफिसिट इज 15 crores। दैट मीन्स फॉर द करंट ईयर, पुराने सालों के जो आपकी लाइबिलिटीज है मैंने वो माइनस कर दी, इस साल तुम्हें 15 करोड़ की पैसे की जरूरत थी। सो प्राइमरी डेफिसिट इज विच टेल्स यू हाउ मच मनी यू वांटेड फॉर दैट करंट ईयर, योर फाइनेंशियल पोजिशन वॉज, हाउ इज योर प्राइमरी डेफिसिट। इस पे भी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आप कह सकते हैं, आजकल आ जाते हैं, बट नॉट टू मच, है ना। तो दिस इज अबाउट द 3 deficits and the entire topic on government budget, right? So any doubts you can take after this class, and tomorrow we'll be doing balance of payment, all right?